Hi guys! Hey guys, welcome back to your favorite lesbian couples YouTube channel, ऐसे कैसे gays? ऐसे कैसे gays. So today our mind is already, and we are gonna talk about a podcast which was done by a famous spiritual leader who said a lot of things which are demeaning to Women And women empowerment. I women would and say. women empowerment. Like, Correct. to my surprise, while I was growing up, my mother used to listen to her teachings, and we would also go to a lot of gatherings where she was a motivational speaker. Wow. And while you guys will watch the clips, you will definitely feel what she's saying, man. Let's get right into it. Let's go. मर्यादा की लाइन के अंदर रिश्ता होना चाहिए ताकि कोई ऐसी चीज ना हो सोसाइटी के लिए नहीं मर्यादा आपके अपने मन को जो खाएगी चीज वो सोसाइटी ने मर्यादाएं वो बनाई थी जो हमारे लिए सुरक्षा होती है धीरे धीरे हम में से बहुतों ने अपनी सोच बदली तो हमने तो सोसाइटी बदल दी Okay. So in this clip, she said that society created some boundaries for our security. Security. So these boundaries, Who created the society? That's my first question. We have heard this a lot in our Indian households ki, we should stay in boundaries. we should stay in boundaries, which is okay. Yes, boundaries, okay, good. But what are the boundaries? Who created these boundaries? Who is the society? Why did society have the right to create these boundaries and we act on it? Why? And you'll definitely see why we are reacting In this such a way. I mean, it may be too soon for you to understand, but let's just keep this in mind that this person mentioned society created those boundaries for our security. our security. Keep that in mind. Let's just continue. आज सोसाइटी डिफरेंट है तो जैसी सोसाइटी होगी हम कहेंगे दिस इज नॉर्मल तो हम उस युग से आए जब बोला जाता था कि शादी हो गई अब घर वापस नहीं आना याद है हिंदी मूवीज में भी बोलते थे अब तुम्हारी अर्थी वहीं से जाएगी सो व्हाट वाज इट ट्राइंग टू इंस्टिल इन द चाइल्ड अ कमिटमेंट टू अ रिलेशनशिप कि एडजस्ट करो हमने भी किया तुम भी कर लोगे इट इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग दैट ऐसा थोड़ी है कि पेरेंट्स नहीं होते बच्चे के सपोर्ट के लिए अगर कभी कोई बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो कौन सा पेरेंट नहीं होगा उस बच्चे हर पेरेंट होगा Okay, let's just take a pause. She said a lot of things. I need some time to process what she just said. Oh my god. So She said we instill this thought in every child. Why? she specifically said women, I guess, that people in golden ages, I would say, used to instill this in women's mind that you should, and she specifically used the Adjust. word adjust. हमने adjust किया है तो आप भी adjust करो. करो, like. अच्छा and तो I should she adjust said, with an abusive she partner. said another thing कि आपकी शादी हुई है तो आपकी अर्थी वहीं से जाएगी. Wow. With all due respect, ma'am, you should understand and you should take a step back to remind yourself that बहुत काफ़ी लड़कियों की अर्थियाँ उनके ससुराल से उठी हैं Not in a happy way though. जलने डाउरी से जलने के लिए Murder. मारपीट होने के बावजूद and Marital rape. that's why society changed those boundaries. So I am not sure why she said it that women should adjust, or I'm saying we should adjust, man. Why? Women should adjust because उनके ancestors हमारी दादी नानी चाची ब्ला 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 पर नानियों ने दादियों ने adjust किया तो you should also adjust. तुम्हारे ancestors ने मार खाई है तो तुम भी खा लो. अरे I just can't. let's just continue. okay yeah. इट इज अ वे ऑफ गिविंग अ ब्लेसिंग कि तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा जुड़ेगा तुम इतना अच्छा एडजस्ट करोगे कि तुम्हारी अर्थी वहां से जाएगी मतलब यू विल ऑलवेज बी देयर दिस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग अगर हम उस तरह से उसको देखते हैं तो वो सोसाइटी I am forced to pause here. She said it's a blessing कि तुम्हारी अर्थी वहां से जाएगी. Like, no matter how cruel your husband, or for that matter your wife may be,
is, but she has to understand, because of the facts we are talking about, औरतों पे बहुत जुल्म हो चुके हैं, and that's why हमने ये boundaries change की हैं. How is this a blessing? I don't understand. How is this a blessing? You telling your child कि तुम्हारी अर्थी तुम वहीं मरो जाकर, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा इन-लॉज, तुम्हारा कोई भी कितना भी घटिया हो, तुम उधर ही मरोगे. How is this a blessing? तो वो सोसाइटी थी, तो उस सोसाइटी में डिवोर्स वाज एब्सोल्युटली बात भी एक सेकंड, उस टाइम पे डिवोर्सेस इसलिए नहीं थे क्योंकि तब लड़कियों को समझ नहीं थी, तब औरतें चुप रहना जानती थी. उस टाइम पे सोसाइटी ने नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ था कि आपके पास कोई राइट है या आपके पास कोई हक है बोलने का. Obviously. क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी के हिसाब से women were not woke. Woke, yeah. So women were supposed to be a showpiece in a man's house. Or I would say a servant, a slave, a worker. And if you are talking about those boundaries, I'm happy that those boundaries were broken. फिर उस सोसाइटी में लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ कि अगर किसी की रियली कुछ बहुत बड़ी इश्यूज थी उस रिश्ते के अंदर, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो, अब्यूज हो, ये सब हो, तो उसमें भी लोग एडजस्ट करते जा रहे थे क्योंकि वो सोसाइटी ने कहा कि आप नहीं अलग हो सकते आपको. तो उसका वो छोटा सा ड्रॉबैक था कि वो छोटी एक पॉपुलेशन जिनको रियली जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम थी, वो भी उस रिश्ते से बाहर नहीं हो पा रहे थे, तो वो पूरा जीवन मार खा रहे थे. करेक्ट. तो हमने बहुतों ने वो देखा अपने घरों में सपोज, फिर हमने कहा हम ऐसे नहीं जिएंगे, विच इज ऑल्सो राइट कि हम थोड़ी मार खाते रहेंगे जीवन भर या अब्यूज होते रहेंगे जीवन भर. तो हमने सोचा नहीं, अगर नहीं हुआ तो देन वी विल मूव आउट, विच इज ऑल्सो फाइन. लेकिन फिर एक ने मूव आउट किया, 2 ने किया, 10 ने किया, फिर मेरे रीजंस टू मूव आउट बिकेम डिफरेंट ना. तो कोई बहुत बड़ा रीजन था तो मूव आउट करना था क्योंकि आपके लिए वो सेफ्टी नहीं है, आपको कुछ हो जाएगा कल. लेकिन फिर एक बार वो सोसाइटी बन गई कि हाँ कुछ नहीं होता. Okay, I have a question now. I have a thought. Yeah. My question is, you are absolutely right when you said that domestic violence is one of the reasons, or was one of the reasons. But what about the other reasons? So according to Ma'am B.K. Shivani, she said only जब जान पर बन जाए आपकी तो आप किसी रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, मेक सेंस. जब आपकी जान पर बन जाती है तो बिल्कुल सेंस बनाती है वो बात. हाँ, पर उसके अलावा अगर छोटे छोटे, हाँ उसके, अगर आपको पति आपको गाली दे रहा है, रोज आपको बोल रहा है कि तू okay. खाना बना, That's okay, I guess. That's okay. So you don't leave your house if your husband is abusive, not physically, sorry, verbally abusive. And अगर डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा कोई रीजन है, पति चीट कर रहा है, तो भी मत मूव आउट करो, मत छोड़ो That is not a valid reason according to सिस्टर शिवानी. अगर इन-लॉज परेशान कर रहे हैं, वर्बली अब्यूज कर रहे हैं, कुछ भी, तो अकॉर्डिंग टू हर दीज आर नॉट द वैलिड रीजंस unless you are actually about to die. Unless your life is threatened, you don't leave. You never leave that relationship unless your life is threatened. Because That is called adjustment. फिर धीरे धीरे वो और सोसाइटी बनी, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, तुम वापस आ जाना. दोनों तरफ से भी, नॉट जस्ट फॉर द गर्ल, इट कैन बी फ्रॉम बोथ साइड्स. तो धीरे धीरे वो सोसाइटी इतनी चेंज हो गई कि आज हमने डिवोर्स को नॉर्मलाइज बोल दिया. और फिर धीरे धीरे इतनी चेंज हो गई कि बहुत छोटी छोटी बातों में अलग. डिवोर्स नॉर्मलाइज कर दिया मतलब डिवोर्स नॉर्मल है. जिस तरीके से देयर आर 2 people who consent to be in a relationship, if one of them is a fucker, other one can decide to leave, and that's what a divorce so is. my question, in 2025, are you saying if there is a woman or a man for that matter, they are divorced, so that's not normal, that should not be normal, she still wants it to be a taboo? Oh, sorry. मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या बोलूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है. हो जाते हैं. तो फिर उससे क्या हुआ, हमारी पावर टू एडजस्ट भी कम होती गई. वाओ, ये एडजस्टमेंट सुन के मैं परेशान हो गई हूँ. एडजस्ट करना क्यों है? मैं परेशान हो गई हूँ. देखो, ओके, आई अंडरस्टैंड व्हेन यू से दैट अ रिलेशनशिप रिक्वायर एफर्ट्स, अ रिलेशनशिप रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग्स.
अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है, एडजस्टमेंट क्या होती है मुझे नहीं समझ में आता. If I say that you should be okay with your partner cheating upon you, या बीटिंग यू, चलो verbally abusing you, asking you to do all the chores, not help you, and probably insulting you, how on earth those adjustments should be normalized? So divorce is not normalized, but adjustments are normalized. In today's world, she's still saying that divorce is a taboo. It should be a taboo. That if you want to get divorced, you should not be. Society क्या कहेगी? फिर धीरे धीरे बाहर रिश्ते में होते हुए बाहर रिश्ते जोड़ना, कहीं देखा, किसी मीडिया में देखा, किसी मूवी में देखा, कहीं और से किसी और कल्चर से सीखा, हाँ. किसी एक ने किया, 2 ने किया, 10 ने किया, Normalize हो बढ़ गया. गया. Normalize हो. Okay. When it was not out there on social media that people are cheating, क्या लोग cheat नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे. लोगों को देखा तो normalize किया. That's still not normalized, by the way, for your knowledge. Cheating should not be normalized. Divorce should be, but cheating should not be normalized. डाइवोर्स नो. आप ऐसे टैबू के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? गलत बात है. चलो अब किसी को कुछ बोलो ऐसा तो बोलते दिस इज तो नॉर्मल. Yeah. यू सी, सो हु क्रिएट्स दिस डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल? कौन बोलता है कि चीटिंग नॉर्मल है? हम तो नहीं बोलते. सॉरी. If you are talking about polyamory, then that's your call. I mean, I'm sure she won't have any say on it because We are not. so हमारे लिए तो चीटिंग नॉर्मल नहीं है. अगर आप उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे डाइवोर्स नॉर्मल नहीं थे, उधर डेफिनेटली चीटिंग तब भी नॉर्मल नहीं थी और आज भी नॉर्मल नहीं है. बस फर्क ये था कि तब लड़कियां चुप कर जाती थी ये सोच के कि हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारे माँ बाप हमें घर में वापस नहीं लेंगे. Yes. हम किधर जाएंगे क्योंकि पति तो काम नहीं करने देता ना. अबव ऑल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था एग्जैक्टली. अर्थी उठवाने के अलावा. या हम ही बना रहे हम ही हैं. तो हम we cannot say what is society calling normal. We should just see आत्मा के संस्कार और कर्म के लिए क्या सही है. चाहे फिर बाकी दुनिया आपको ओल्ड फैशन बोले. She knows how spiritual and religious I am. जब कर्मों की बात आती है, I know, and I would never debate there. आपके कर्म आपको ये सिखाते हैं कि आप किसी के साथ गलत ना करें, but it doesn't mean कि आप अपने साथ भी गलत होने दें. गलत सहना कौन सा कर्म अच्छे करने वाली बात है, मैं नहीं जानती. अगर ऐसे हो रहे हैं तो मतलब और जहाँ तक रही कर्मों की बात, सिस्टर, सबसे ज़्यादा उत्तम कर्म होता है भगवान को याद करना, अपना पाठ करना. अगर आप वो कर रहे हैं और आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक आप डाइवोर्स्ड भी हैं तो भी भगवान को कोई प्रॉब्लम होगी. तो अकॉर्डिंग टू मैम द स्टेयरवे टू हेवन इज नॉट बीइंग डाइवोर्स्ड एंड adjustments and then being abused or whatever. So that's क्योंकि वो कहेंगे ये तो बहुत ओल्ड फैशन है. हम ओल्ड फैशन नहीं है, हम न्यू फैशन नहीं है, हम राइट फैशन पे होने चाहिए जो सोल के लिए राइट है. फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा वैसे ही डिवोर्स हो जाता है बहुत जल्दी, इससे अच्छा तो पहले ही इकट्ठे रह के देख लें. फिर उसमें गए, ओके, चॉइस ऑफ 2 पीपल, लेकिन फिर उसमें बातें आने लगी, फिर उसमें कमिटमेंट इशू आने लगे, फिर एक ने सफ़र किया, किसी एक को. सो देयर आर ऑलवेज इश्यूज. आई फील शी कुड नॉट इवन प्रूव हर पॉइंट इन दिस टॉपिक, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में. शी वॉन्टेड टू से कि कुछ गलत है, बट शी कुड नॉट. कुछ प्रूव नहीं हुआ है यहाँ पे. तो सोसाइटी क्या कह रही है, नॉर्मल क्या कह रहा है, इस दायरे पे तो अभी नहीं चल सकते क्योंकि नॉर्मल तो बहुत फास्ट चेंज होता जा रहा है. हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो जो नॉर्मल बोल रहे हैं वो क्या आत्मा की शक्ति के लिए वो नॉर्मल चीज है. तो आप अपना डिसीजन उस बेसिस पे लें. मतलब आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यहाँ, इफ़ यू टॉक अबाउट कर्म, भगवान, कलयुग की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, यहाँ इंसान का सगा नहीं है और आप
सोसाइटी के बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं आप? मतलब किस लाइन में आ गए हैं आप? इससे सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि आपको डाइवोर्स से दिक्कत है. And आपको लिव इन से प्रॉब्लम है, आपको डाइवोर्स से प्रॉब्लम है, आपको लड़कियां, लड़के, हर कोई आपको एडजस्ट करता अच्छा लगता है. आपको अच्छा नहीं लगता है कि लोग अपनी लाइफ खुशी से जिए? आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग. आपको खुश लोग अच्छे नहीं लगते? आप कह कोई रहे अगर हैं सिंगल खुश हो तो उसको रहने दो ना. हाँ, I उसको mean, रहने दो. there are people who chose to live single. How's that an issue? उनको नहीं मिला कोई उनका मतलब का, तो वो रह रहे हैं मस्त, जिंदगी बिता रहे हैं. पर वो नॉर्मल नहीं है. ऐसे कैसे रह रहे हो आप? बिकॉज ओल्ड फैशन थिंकिंग, एक सेकेंड, पुरानी सोसाइटी ओल्ड फैशन थिंकिंग इज टू गेट मैरिड बाय द एज ऑफ 25. अगर आप तब तक मैरिड नहीं हुए तो आपकी बायोलॉजिकल. On that note, we have another video lined up where Gyani, but he thinks that he knows it all, was giving advice to men men who they should marry, or what is the right age of women that they should marry. that they should marry. On that note, this video blew our mind. We are so shocked to see that divorce is not normal. It's a taboo. Adjustments are normal. You should die but not get divorced. I don't know, like, sorry babe. Okay, so please let us know your thoughts in comments, and if you also come across any such videos, do let us know. Send us links on Instagram, and we would definitely love to know more about these things. And till then, thank you so much for watching. Love is love. She's just in shock, don't worry. She's a feminist in a good way. In a तू good बैड way. वे ले ले, तू बैड वे ले ले. Acha, okay. Bye guys, thank you so much for watching. Love is love. Take care of yourself, be proud of yourself.